Thank you. Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of the Government of Assam, I would like to extend a warm welcome to you all to the inaugural session of Advantage Assam 2.0. We would now like to felicitate our esteemed Chief Guest, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I'd request Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, to kindly do the honors. Honorable Prime Minister is being felicitated with a gamusa, a memento of one-horned rhino of Assam made with semiconductor chips, a memento of one-horned rhino of Assam made with semiconductor chips, and a Kham-style painting of the Ma Kamakhya Devalaya, considered to be the oldest and the most sacred of the 51 Shakti Peeths. I would now request you, sir, to kindly take your seat in the hall. Honorable Prime Minister, sir, your august presence will definitely enhance investors' confidence on Assam's vast potentiality, and this will further accelerate the state's journey of development. Honorable Prime Minister's deep affection for Assam and his personal commitment have brought together over 60 heads of mission today here to participate in and witness this grand event. We express our sincere gratitude, sir. I would now request Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly deliver the welcome address. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Shri Lakshman Prasad Acharya, Honorable Governor of Assam, Dr. Subramaniam Jaishankar, Honorable Union Minister for External Affairs, Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister, Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister, His Excellency Mr. Yoton Phunisho, Honorable Minister for Agriculture, Bhutan, Dr. Manik Saha, Chief Minister, Tripura, Sri Pavitra Margherita, Union Minister of State, leading industrialists, Excellency, ambassadors, foreign delegates and delegation, my colleague, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं आप लोग सबको एडवांटेज असम 2.0 में आप लोग आने के लिए आप लोग सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद में 2018 साल का 3 और 4 फरवरी में हम पहले असम में एडवांटेज असम शुरुआत किए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर ओसाट फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लांट का भी उन्होंने अनाउंस किए जो 12 लाख मेट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए।
हमारे अपने डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम हमारे देश से 4% ज्यादा हुए करते थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए। देश का साथ हमारा जो संयोग वो सिकेन नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सिकेन नेक से हुआ शुरू हुए। बड़ा 8 कुएं आए और असम एक प्रकार से सारों दशकों में Assam has witnessed unprecedented agitation and insurgency. 2016 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने। आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे, आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 2016 सन का बाद 2326 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का निर्माण हुए। 600 किलोमीटर हमारे मीटर गज को ब्रॉड गज किए गए। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 200 किलोमीटर रेलवेज का डबल ट्रैक बैठे। हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट भारत के 7 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बने। उनका साथ साथ हमारा प्रदेश का आर्थिक गति तीव्रता पाने लगा। 2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी $29 बिलियन हुए करते थे, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी $68.7 बिलियन हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% एंड बाय 2030 विल बी ए इकोनॉमी ऑफ $143 बिलियन US। हमारे प्रदेश में टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत किए। हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए। आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए। प्रधानमंत्री जी की जो कि सपना है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। मैं असम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूंगा, वी विल एंश्योर बेस्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वी विल एंश्योर बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, वी विल एंश्योर बेस्ट इंसेंटिव और वी विल एंश्योर ए गुड and congenial industrial atmosphere in our state. प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं। 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनने का बाद सार प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए। हमारे देश का सारे पार्ट्स का, सारे खंड का, सारे भूखंड का इक्वल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट को साथ देते हैं। मैं आप लोगों को भी पुनः हमारे असम प्रदेश में विनियोग के लिए आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में आइए। हमारे इंडिया का जो गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, यहां आके आप लोग निवेश कीजिए। मैं दोबारा एक बार हमारे इन दिस समिट टुडे वीड लाइक टू वेलकम ए बिग डेलीगेशंस ऑफ His Excellency Ambassadors, Head of Missions, which has been led by our Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. I'd like to welcome all the Excellencies and Head of Missions
for today's deliberation. Thank you so much. Jai Hind, Bande Mataram, Jai Ahom.